It is now my pleasure to formally introduce Shri Atul Kumar Tiwari sir, the Honorable Secretary of Government of India. एक IAS बनना ही मुश्किल होता है, उसमें एक स्टेट में सेक्रेटरी बनना मुश्किल होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी बनना तो बहुत ही मुश्किल होता है. He has really travelled that path, which is phenomenal. He is from the 1990 batch. He has led several departments for the state government as well as for the government of India, from urban development and commerce, industries and commerce and education and so on. It is a huge pleasure to have you here, sir. I really request, we're all waiting to hear from you. मंचासीन हमारे सीनियर ठक्कर साहब, गांधी जी, गेदाम जी, निधि जी और कैनाथ जी, आप सब लोगों को और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मैं कहूँ भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय से बहुत बहुत सारा नमस्कार. आप लोग अपना सारी जवाबदारियां छोड़कर आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इससे मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ. आपका हृदय से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग आज इस बैठक में उपस्थित हैं. Ashish should not call the secretaries honorable, because once you call them honorable, then it doesn't become aspirational. It becomes too much aspirational. So when Mr. Gandhi came to meet us in Delhi, then I had to remind him that the real honor is with the industry, the people who take millions of risks to start a business, earn their living, and also give so much employment. Actually, as a country, and as very rightly pointed out by Dr. Gedam, we should be in a position to respect and salute the industries because of which our country is what it is, and they are creating the prosperity all around. Not the government servants. This is for our jobs to create conditions, but the activity has to come, has been there, and will always come from the industry side also. So I also, again, since it is a meeting of the Maharashtra Chamber of Commerce, etc. So from the government side, also I would like to salute all the industry leaders who are present there for their contribution to national making. Thank you very much. We have heard quite a lot about the different aspects of the skilling, and I'm really delighted to be in Nashik. I remember coming here almost 30 years back when I was a probationary officer, and we went to Trambakeshwar, and at that time, as Gedam was saying, the things were smaller that time, and I still look forward to go and visit this shrine again and seek the blessings. So that whatever has been said about in the budget this time, English is okay or shall I speak in Hindi? Hindi. तो इस बार जो बजट में इस बार जो व्यवस्था की गई है, वो इसमें कोई अनूठा अतुल तिवारी या जयंत चौधरी जी का, जो हमारे माननीय मंत्री, उनका योगदान से ज़्यादा यह भी एक समसामयिक विषय है हमारे लिए कि देश के इस मुकाम में हमें एम्प्लॉयमेंट और कौशल विकास पर बहुत ध्यान देना है. और आप सब समझते हैं, खासकर इंडस्ट्री लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल, कि अगर हम स्किलिंग एज ए इनपुट अगर हम किसी भी एक्टिविटी में डालें तो उससे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी सब ज़्यादा होती है. तो जैसे कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, वगैरह वगैरह. स्किल आज के ज़माने में एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, जिसको हमको निखारने की, सुधारने की, संभाल के आगे बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है. और जैसा ठक्कर साहब ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी स्किल बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो अक्सर कहते हैं कि भाई अब सबसे ज़्यादा खुशी आनंद उनको तभी मिलेगा जब हमारा देश स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन पाएगा. हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्किलिंग, मैंने बहुत सारे सेक्टर में काम किया है, और स्किलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्टर. क्यों? वो इसलिए कि देश में बहुत सारी चीज़ें, इनपुट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं, और वो बच्चे तभी पढ़ाई कर पाएंगे जबकि उनकी प्री स्कूल न्यूट्रिशन अच्छी होगी, जब उनकी माताएं को अच्छा सा पौष्टिक आहार मिले. वहाँ से अगर हम लेके चलना शुरू करें और स्कूल से निकलना है, हमारी स्कूल
व्यवस्था से निकलना, उनको क्या उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, क्या स्किल्स लेके आए, वहाँ पर उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा, अगर हम स्किलिंग करते भी हैं और लोगों को तैयार भी करते हैं, हम जितना तैयार करें उससे इंडस्ट्री कहीं आगे बढ़ जाती है या थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाने से बड़ा ज़्यादा मिसमैच हो जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई अपनी कन्वेयर बेल्ट में आपकी कोई प्रोडक्शन चल रही है और आपने कुछ एक नया कुछ प्रोडक्ट बनाया, बाय द टाइम इट इज़ कमिंग आउट द मार्केट हैज़ मूव्ड। सो ये दोनों हालत में पिटाई किसकी होती है? स्किल डिपार्टमेंट की होती है। सब लोग आकर पीटते हैं कि भाई आपने स्किलिंग कराया तो उसको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिली, और आपने स्किलिंग कराया वो ठीक से नहीं कराया, उसने कुछ सीख नहीं पाया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको एक समग्र रीति से देखने की आवश्यकता हो कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में ये संभव हो पाया। पहला ये कि उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट को एक फोकस देने के लिए एक मंत्रालय की रचना की। दूसरा, उस समय से 10 साल से लेकर NSDC बना, हमारी डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग लेबर मिनिस्ट्रीज ऑफ लेबर से आई, हमारे PM को स्कीम चलाई, जन शिक्षण संस्थान हमने बनाए जो HRD में उसको लेके आए, और पूरी स्किलिंग इकोसिस्टम होता है, NSQF बनाना, जॉब रोल्स बनाना, NCVT बनाना, और तमाम तरह की स्किल इंडिया पोर्टल बनाना, तमाम तरह की चीज़ें की गई हैं, जिससे पिछले 10 सालों में हम कह सकते हैं कि कमोबेशी कहीं हमारी गलतियां भी हैं, कमोबेशी हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जब हमारे पास ये व्यवस्था है जिसको हम अब विद सम करेक्शंस एंड सम न्यू डायरेक्शंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो, जैसा गदाम साहब कह रहे थे, जैसा कि हमारे एजुकेशन और स्किलिंग में जो गैप हमें दिखता है उसको कैसे भरा जाए। तो अगर आप NEP अगर कोई भी प्रबुद्ध और व्यक्ति होगा वो जरूर NEP एक बार पढ़ के देखेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जो हमारे रोड मैप जो बनाया गया है देश के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी और बोलूँगा फंडामेंटल है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो कैसे कि स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन को स्किलिंग के साथ हम जोड़ सकते। उसके क्रिटिक भी हैं, कुछ लोग क्रिटिक कहते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को क्या सिर्फ नौकरी देने के लिए तैयार करना चाहते हैं। जिस देश में अभी हमारी ज्वलंत समस्या जो बनी हुई है, जिसमें हम हमारी बढ़ती संख्या में युवाओं को हमें रोजगार दे के इकोनॉमी में प्रोडक्टिवली एंगेज कराना है, तो ये इस तरह का दृष्टिकोण भी बहुत आवश्यक है। तो उस दिशा में क्या क्या काम किए मैं उसके बारे में आपकी नज़र डालना चाहूँगा। ये थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सी जानकारी रहनी चाहिए ताकि आप बाद में मैं जो कहूँगा उसको आप रिलेट कर पाएंगे। पहली बात जो इसमें हुई है कि स्किल और एजुकेशन को हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो अगर हम स्किल और एजुकेशन दो एंटिटी अगर लेते हैं तो स्किल एजुकेशन में कैसे घुसेगा, एजुकेशन स्किल में कैसे घुसेगा, इसके बारे में दो दृष्टांत देके आपको उसमें परिचय कराना चाहूँगा। अगर स्किल को हम एजुकेशन में घुसाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उसको एक समकक्ष में रखें। कहने का मतलब कि जो स्किल में जो उसने बच्चे ने सीखा है उसको जो महत्व मिलना चाहिए, जो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो इक्विवेलेंस मिलना चाहिए एजुकेशन से, किसी मामले में उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। उसको हम कहते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा अगर या वो स्किल सीखता है या क्लास में पढ़ता है या एक्सपीरियंशियल है, कोई बहुत बड़ा सितार प्लेयर या कोई बहुत बड़ा कारीगर है, उसने सदियों दसों साल काम किया हुआ है, तो उसका एक फॉर्मूला लगा के उसको कैसे क्रेडिट मिले ताकि क्रेडिट लेवल पे सब लोग बराबर रहें। और जैसे जैसे हम अपने बौद्धिक स्तर पर और कौशलता के स्तर पर हम आगे बढ़ें, वो क्रेडिट हमें आगे बढ़ते चलना चाहिए। इसके बारे में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना, जिसके बारे में काफ़ी काम भी हो चुका है। और अभी कोई भी हम सर्टिफिकेट खास कर स्किलिंग में इशू करते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें कितना उसको क्रेडिट मिला, 30 घंटे का या क्रेडिट मिलता है, और साल में 1200 क्रेडिट मैक्सिमम हो सकते हैं। कुछ क्रेडिट आपको एजुकेशन से आएगी, कुछ आपको क्लासरूम प्रैक्टिकल से आएगी, कुछ आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आएगी। इससे उसको एक समकक्ष बनाने की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो है वो एजुकेशन को स्किल में कैसे लेके आए। स्किलिंग को एजुकेशन टू स्किलिंग आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट एक बात सबसे बड़ा ज़रूरी है कि जब तक अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग को नहीं लेकर आएंगे तब तक बच्चों में हाथ से काम करने के बारे में, कौशलता के बारे में वो जो विश्वास, जो एस्पिरेशन वो नहीं बन पाएगा।
तो उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत अभी 8वीं क्लास तक की उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक और पूरी करिकुलम उन्होंने तैयार की हुई है। उसमें कैसे 6ठी क्लास से वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में बताना, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कैसे हम उनको वोकेशनल एजुकेशन की ओर प्रेरित करें, 11वीं 12वीं में कैसे उसको हम वोकेशनल एजुकेशन जो स्किल एजुकेशन पढ़ाते हुए, अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि 12वीं के बाद वो सीधे स्किलिंग में चला जाए तो उसकी हम कैसे एजुकेशन पाथवे तैयार की जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। हायर एजुकेशन अगर हम बात करें तो हम UGC AICTE के साथ बात करते रहते हैं। उन्हें बड़े उल्लेखनीय काम किए हैं, जैसे कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाए, AICTE में जाए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उनकी संख्या कम हो रही है इंजीनियर्स की। क्यों कम हो रही है? कि जैसा ठक्कर साहब ने कहा कि अगर कोई सिविल इंजीनियर आता है उसको सबसे पहले हम नीचे में ओवरसीयर से नीचे का काम देते हैं, जब वो सीखता है तब आगे बढ़ता है। ये बात अलग है, बट चिंताजनक बात ये है कि लोग सिविल इंजीनियर आते क्यों नहीं? ज़्यादा लोग कंप्यूटर में क्यों? ये भी हमारे यहाँ पे एक विसंगति पैदा हो रही है कि हमें देश को विकास करने के इतने ज़्यादा सिविल इंजीनियर चाहिए लेकिन आ नहीं है। तो वो भी एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हमारी जो है, वो जो हमारी जो मानसिकता है उसको चेंज करने की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं कहूँगा उसमें जब अगर हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनके कोर्सेज के दौरान अगर हम OJT उसके अंदर डाला जाए, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज डाले जाएँ तो कितना अच्छा रहेगा। उस वजह से AICTE ने इसके बारे में काफ़ी प्रयास किए हैं। और साथ ही साथ अभी हम कर्नाटका और लगभग 5 स्टेट्स में हमने उनके सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ हम बात करके ठक्कर साहब, हमने अभी एक क्रिस्प एक संस्था है, तो कैसे अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स हम कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ला रहे हैं। और उसके लिए NCVT जो हमारी रेगुलेटर है, उन्होंने भी अपनी एक रेगुलेशन बनाई हुई है कि कैसे वो क्वालिफिकेशन लेके हम अपने एजुकेशन के करिकुलम में फिट करें, और ताकि जो बच्चा जब वहाँ पढ़ के निकले उसको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी ज्ञान, so that ideally speaking the child should hit the ground running। ऐसी व्यवस्था करने के भी हमारे इसके बारे में प्रयास हुए। उसमें काफ़ी चीज़ें काम हो चुकी हैं, और जो खासकर जो कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेज और इवन नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके बारे में बहुत काम हुआ है और आगे भी होगा। तो एक पढ़ाया कि कैसे एजुकेशनल स्किल को हम साथ जोड़ें, इसके बारे में क्या हमारे आधारभूत प्रयास हो रहे हैं। इस प्रयास में मुझे लगता है कि इसमें गति मिलेगी, क्योंकि सारे लोग, अभिभावक हो या बच्चा हो या इंडस्ट्री हो या एम्प्लॉयर हो, सारे लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से हर एक साल लगभग 5 करोड़ हमारे हायर एजुकेशन में लोग आते हैं, कम से कम 4-5 करोड़ हमारे 20 करोड़ हमारे सेकेंडरी एजुकेशन से लोग निकल के आते हैं। हमें नर्स, हमें जो पकड़ना वहाँ पे अगर पकड़ेंगे, एटलीस्ट हमारा जो फ्लो आ रहा है वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। अब बच्चा हमारे स्टॉक को कैसे सुधारने का, स्टॉक सुधारने के लिए जैसे हमारे पास, जैसे हमने कहा, आप पूछेंगे कि भाई ये तिवारी का मंत्रालय करता क्या है जो इतना बढ़ के बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा उन्होंने कहा, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत हम स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास भी देखते हैं, शायद हम एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ काम करते हैं। थोड़े हमने विथ ह्यूमिलिटी हमने कुछ काम किए हुए हैं, जिसका आंकड़ा देना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये वो फोरम नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कितने तरह की स्किल दी जा सकती है, जिसमें आप कल को, आप जैसा गांधी साहब बता रहे थे कि आपकी जो कमिटीज़ हैं या ट्रेडा की जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे स्किल को घर घर, हर एक गाँव, हर एक शहर में लेके जा पाएँ। जैसा ठक्कर साहब ने बड़ी अनूठे तरीके में कहा कि शिक्षा, कौशल विकास और स्वच्छता, इसको हम कैसे वार्ड लेवल पर लेके जा सकें। ये बहुत ही सराहनीय, अनुकरणीय काम हम कर रहे हैं सर। और अंत में मैं कहूँगा, जैसे कि गिदान साहब जो है, जैसा उन्होंने कहा कि नासिक सिटी को हम कैसे स्किल के बारे में सेंटर बना के एक सैंड बॉक्सिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हम करना चाहेंगे। और जब हमारे पास गिदान जैसे डायनामिक ऑफिसर हैं, जैसे हमारी निधि के जैसे लोग, इंस्पायर्ड लीडर्स, हमारे गवर्नमेंट लीडर्स हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें आगे कर पाएंगे। और इसके बारे में ज़रूर आज हम लोग सर्किट हाउस में बैठ के इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। आज आपके साथ चर्चा करने के बाद इसको और एक मूर्त रूप देने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। तो हमारा पूरा सहयोग है, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे शायद। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार बजट में 2-3 चीज़ें बड़ी मुख्य कही गई, जिसका उल्लेख निधि जी ने भी कहा
पहला जो बजट में दिया गया है कि कैसे हम स्किल लोन जो हमारी सब व्यवस्था है उसको हमने कल ही बजट में अनाउंस हुआ, उसके इतने दिनों के बाद हमने उसको सारी क्लियरेंस ली, उसको हमने नोटिफाई कर दिया। कल मंत्री जी ने उसका एक फंक्शन में किया था दिल्ली में। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्किल के लिए लोन लेना चाहता है, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनल स्किल को साथ लेके आना जरूरी है। किसी को ना लगे कि एजुकेशन करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्किल करना थोड़ा नीचे की चीज़ है। दोनों को समकक्ष लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समकक्ष हम जैसे हमने बताया कि एजुकेशन में कैसे जोड़ के लाएं, साथ ही उसकी जो एस्पिरेशनल वैल्यू उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएँ, इसमें भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है, हमने बहुत सारे सजेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिए थे कि एजुकेशन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उससे स्किलिंग को ट्रीट किया जाए, जिससे हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर को भी फ़ायदा हो, स्कीम के बेनिफिट मिले, GST मिले। हम प्रयास करते रहेंगे, जब भी होगा देखा जाएगा। बट इस लोन के माध्यम से जो पहले जो धनराशि 1.5 लाख थी उसको 6.5 लाख हमने किया। हम NBFC को लेके आए, हम नॉन NSQF कोर्सेज को लेके आए। हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो किसी किसी मायने में काफ़ी हार्ड कोडेड हो गई, उसको सुधारने की आवश्यकता है, विथ सम जस्टिफिकेशन, विथ सम वैलिडेशन। तो हमने उसमें नॉन NSQF कोर्सेज को NBFC के साथ 6.5 लाख लोन देने के, कल को हमारे जैसे टूरिज्म में, कल को मैं गया था दिल्ली में हमारी बेकरी प्रोडक्ट देखने, वहाँ पे 2.5 लाख रुपए लगते। कल को हमारे NSDC आपकी कंपनी जिसके आप डायरेक्टर हैं टक्कर साहब, उसकी कंपनी ने NSDC ने ग्रेटर नोएडा में जर्मन और जापानीज सेंटर गया, मैं इसको देखने गया। वहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए हमारे खर्च होते हैं और ज़्यादा कि हम अपने युवा युवतियों को लैंग्वेज के साथ बाहर भेज पाएँ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप जाएंगे हॉस्पिटैलिटी में, अगर आप जाएंगे जैसे हमने ताज साइट के साथ ट्रेनिंग हमने MOU किया हुआ है, वहाँ पर जो काम करते हैं उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं। तो इन सब सारे काम करने के लिए कोई भी सरकारी व्यवस्था इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती। इसके लिए हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि बैंक NBFC के साथ क्रेडिट गारंटी के साथ विदाउट एनी कोलैटरल हम लोन दे पाएँ। उस लोन की व्यवस्था की गई जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे युवा युवती ले सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज के लिए अगर हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, जैसे आपने कहा रिवेटिंग सिस्टम हो रहा है। नागपुर में भी गवर्नमेंट ITI हमारी DOSO के साथ रिवेटिंग करती है। आप कभी हमारे ऑफिस आइएगा तो उन्होंने रिवेट किया हुआ मुझे एक प्लेन का मॉडल दिया है, उसको मैंने अपने टेबल पर रखा। अब मैं जब गया अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने दिखाया कि सर देखिए हमारे ITI में कितनी अच्छी रिवेटिंग की गई, ताकि लोग लगे कि जो ITI क्या नहीं कर सकता, ITI में कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, ITI के बारे में हम क्यों ध्यान नहीं देते। ये सारा हमारी जो मानसिकता है, हमारे मिडिल क्लास अपर कास्ट जो कल्चर है उससे प्रॉब्लम है। हम हमेशा सोचते हैं कि ITI में वही लोग जाता है जो स्कूल में ना जाए, ITI में वही जाता है जो पढ़ नहीं पाए। ये सारी व्यवस्था से हमें उसको निकलना है। इसलिए मैं दूसरी स्कीम के बारे में आ रहा हूँ जिसमें हमने ये तय किया है कि 1000 ITIs को हम वर्ल्ड क्लास सेंटर डेवलप करेंगे। और धनराशि कितनी रखी गई है? 60,000 करोड़। तो हमें लगा कि आज तक हम जो ITI में क्यों नहीं कर पाए, हम इसलिए नहीं कर पाए कि बहुत कम पैसे देते हैं। हमने कहा पैसे पूरी दो, इंडस्ट्री को साथ लेके आओ और स्टेट को साथ लेके आओ। तो जैसे आपका मान लिया नासिक का अगर आपका एरिया है दीदी जी, यहाँ पे हम चाहेंगे कि कम से कम 4 हब बने ITIs बने और कम से कम 50 हमारी स्पोक ITIs बने और हमारी सेंटर ऑफ एमिनेंस 4-5 हमारी इंडस्ट्री लोग रहें और इंडस्ट्री को हम लेके आगे बढ़ें। ठीक है, और उसके लिए जो भी गवर्निंग बोर्ड होगा वो इंडस्ट्री के साथ ही बजट किया जाएगा। हमारे जो सरकार का स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा उसकी कंज्यूमेबल्स, उसके सैलरीज वगैरह मिल जाएगा। इंडस्ट्री के साथ आगे आकर हमें ट्रेनर भी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हम जैसे इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़े, जैसे ठक्कर साहब की बात लीजिए, ये आपने क्या नाम है फाइनेंस साहब की बात लीजिए, अगर आप अपने को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं हम एक नया सेंटर या जो एग्जिस्टिंग सेंटर को डेवलप करें, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है। उसमें आप शॉर्ट स्किलिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें अप स्किलिंग भी कर सकते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म स्किलिंग भी कर सकते हैं। उसको आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको सिविल इंजीनियरिंग के साथ आपने जोड़ा और डिफरेंट लेवल ऑफ स्किलिंग कराया जा सकता है, राइट फ्रॉम द सर्टिफिकेट टू द हायर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा, T2। तो अगर बच्चा जो है अगर वो अपनी जैसे मान लीजिए 8वीं के बाद आया या 10वीं के बाद आया अथवा 12वीं के बाद आया, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ही कम्स फ्रॉम, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के रख सकते हैं।
हमारे जो NCVT है, आप किसी भी तरह का कोर्स बना के हम उसको अप्रूवल देने के तैयार बैठे हैं। हम थोड़ा सा ठोक पीट का आपको और रास्ता बताएंगे, उसको आप आगे बढ़े। अगर आप कोई इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हैं, उसके लिए हमने अभी रेगुलेशन में बदलाव किया है। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें हम अभी लेके आ रहे हैं, 2 तो अभी ऑलरेडी है, एक तीसरी चीज़ हम लेके आ रहे हैं। पहली होती है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री अगर किसी ITI के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उस ITI के साथ हम कोर्स ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिसमें बच्चा जो है या बच्ची जो है, वो बच्चियों की संख्या ITI में बढ़नी चाहिए। इंसिडेंटली अभी 12% है, इसको कम से कम 25% ले जाना है, और इसके बाद बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है हमें। फिर भी अगर इंडस्ट्री के साथ मिलता है तो वो 50% इंडस्ट्री में, 50% वहाँ करे, और हम उसकी ऑनलाइन टेस्टिंग करके ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है उसको हम दे पाएँ। दूसरा होता है फ्लेक्सी MOU, जिसमें आप कोर्स डिज़ाइन करें, जिसमें उन्हें किसको टाटा के, महिंद्रा के साथ हमने, टोयोटा के साथ हमने, मारुति के साथ, तमाम 4-5 कंपनियों के साथ हमने डिज़ाइन किया है। सारी कोर्सेस वो करें और फ्लेक्सी MOU करके हम उसको सर्टिफिकेट दे दें। उससे क्या होगा कि उसमें क्यों ज़रूरी है? उससे ज़रूरी इसलिए है कि हम उनको अपनी जो सर्टिफिकेट का जो हमारा जो दायरा है उसमें उनको हम लेके आएँ, और इंडस्ट्री के साथ जो हम कर सकते हैं वो भी उसको हम लेके। जब तक दोनों का संगम होगा तभी जाके वो मार्केट के लायक होगा और हमारे युवा युवतियों को आगे रोजगार बनने में सहायता मिलेगी। तीसरी चीज़ हम जो कह रहे हैं कि इसमें हमने ये भी गाइडलाइन इशू किया है कि कैसे कोई इंडस्ट्री भी एग्जिस्टिंग ITI को अडॉप्ट कर सकता है, जो हमारी नई स्कीम के अंतर्गत आएगा निधि जी, और कैसे नई ITI बना के उसको ITI का एफिलिएशन दे सकता है। उसके लिए हमने कहा है कि अगर कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ के अपने एग्जिस्टिंग उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है या जैसे उसको अगर ITI अगर बनाना चाहता है, तो उसके लिए हम उनको ना कोई फीस की पाबंदी रखेंगे, ना उनको कोर्स की पाबंदी रखेंगे, ना उनको किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री हमारे साथ लगे और अपनी नीड के मुताबिक हमारे युवाओं को तैयार करें। उसमें और भी तरह की बहुत सारी चीज़ें हम उसको देख सकते हैं, कैसे हम स्कॉलरशिप से फीस लेके आए ताकि कुछ पार्ट फीस हम उनको भी दे पाएँ। आज हमारी स्किल लोन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर हाई एंड कोर्सेज हैं जिसको कोई भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग सेंटर चलाने में, जो सरकारी ITI में तो चलेगा नहीं, उसके लिए हमें बड़ा लैब चाहिए, टीचर ज़्यादा चाहिए, कंज्यूमेबल ज़्यादा चाहिए, बिजली का खर्च ज़्यादा चाहिए। तो सब चीज़ें लेके हमें ट्रेनिंग का कॉस्ट को भी बढ़ाना है, तभी हम क्वालिटी दे पाएंगे। अगर हम उसी इक्विलिब्रियम में चलते रहेंगे तो हम कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों को देख के वो भी एक स्कीम हमने तैयार रखी हुई है जिसको आप इसको उपयोग कर सकते हैं। थर्ड बचा था इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। इंटर्नशिप स्कीम ये मैं कहूँगा कि एक काफ़ी विन विन सिचुएशन की गई है, जिसमें सरकार वो बच्चे को एक सीखने का मौका दे रही है ताकि इंडस्ट्री को भी वहाँ पे कुछ लोगों को साथ लेकर उनको सिखाने का मौका मिल रहा है। आपकी भी अगर आप इंडस्ट्री ऐसा है जैसा आप रियलाइज़ करते हैं, खासकर नासिक इंडस्ट्रीज़, कि आप सोचते हैं कि आपकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी काम है कि हम कैसे अपने सोसाइटी के लिए, युवाओं के लिए काम कर पाएँ। और उस दिशा में अगर सरकार इतना आगे बढ़ के कुछ करे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हम कैसे विन विन प्रोडक्टिव बना पाएँ, ये भी करने की बहुत हमें आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कौशल भवन में दिल्ली में बैठे हैं, हम आप सब लोग को आमंत्रित करते हैं। गांधी जी आए, उनके बाद से मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मैंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा तभी छोड़ कर आते हैं, क्योंकि एक बार नासिक में जरूर कुछ बात है। और जैसा आशीष जी ने बताया, मुझे लगा बहुत बड़ी बात है। अब जब केदार जी कह रहे हैं उससे भी बड़ी बात है, तो इन सारी चीज़ों को देख लग रहा है कि मैं एक अच्छी जगह आया हूँ जहाँ पे whatever I am saying is finds a receptive ears। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़मीन जो नासिक की है वो डायनामिक है, प्रोएक्टिव है, बहुत उर्वर है। इसमें थोड़ा सा भी डालने से, सपोर्ट करने से लहला के हमारे फसल उगेगी। और ये कौशल के बारे में मैं पूरी अपनी तरह से आपको सहायता देने का आश्वासन देना चाहूँगा। हमारी टीम यहाँ लगी हुई है, NSDC की टीम लगी हुई है, और मैं चाहूँगा कि आने वाले 2-3 महीने के अंतर्गत जो गांधी जी ने अपने नेटवर्क के बारे में कही, इस एरिया में 5 जिले में, धुले, अहमदनगर, नासिक और नंदुरबार में ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे JSS की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। JSS भी हमारी एक ऐसी संस्था है जो लोकल लेवल पे 2 स्टेप्स पे हमारी महिलाओं और जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको हम स्किलिंग कराते हैं।
हम चाहते हैं उनको हम और संगठित करें, हम चाहते हैं कि उनके लाइवलीहुड क्रिएशन करें, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने इंडस्ट्री में निकलें। तो इस तरह की व्यवस्था भी उनके पास पड़ी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि जो स्किलिंग की जो व्यवस्था है वो एक वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकती आशीष। जो अगर एक महिला को स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप दिखाने की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, उसके घर के पास, उसके मोहल्ले में हम उसको स्किलिंग कराएं और वो कुछ ऐसा सीख पाए जिससे कि घर में रहते हुए अपने परिवार की इनकम को बढ़ा पाए, ताकि उसको और कोई बाहर कहीं जाने की जरूरत न पड़े। हमारे लिए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा, विन विन सिचुएशन उसकी एक व्यवस्था है। कुछ बच्चे जो पढ़ के इंडस्ट्री में ITI जाना चाहते हैं उनकी हमने व्यवस्था की हुई है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म स्किलिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हमने व्यवस्था की हुई है। कुछ लोग काम कर रहे हैं उसको रीस्किल अपस्किल करना तो उसकी व्यवस्था की गई। तो इस तरह की व्यवस्था का पूरा संचार करने के बावजूद, जिसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव लगा हुआ, प्राइवेट इनिशिएटिव भी आएगा, तभी हम देश को आगे जाके आगे बढ़ा पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों से मेरा सविनय आग्रह ये होगा कि आप स्किल इंडिया डिजिटल हब, हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसको आप सब लोग अगर देखें, आशीष जी आप जरूर देखें क्योंकि आप सबसे प्रबुद्ध हैं। आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन नासिक के बारे में दिया, मन मुक्त कर दिया हमारा ऐसा। और चूंकि गेदान जी आपके इस 11वीं 12वीं के मित्र हैं, आप लोग दोनों जने बैठ के देखें उसको आप कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल मैचिंग, यू नो, गैप एनालिसिस के बारे में, कौन से कोर्सेज के बारे में उसे कैसे मैचिंग कर पाएँ, ताकि हम अपनी पूरी फोर्स जो है NSDC की फोर्स, हमारे मंत्रालय की फोर्स, हम उसके पीछे लगाएं, ताकि हम वहाँ पे ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाएं ताकि अगर किसी एक छात्र को या किसी युवा युवती को लगे कि मैं किसी नंदुरबार के किसी कोने में पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ और मुझे ये मेरी ये विद्या अर्हता हमारी ये है, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की हुई है, मुझे इस तरह पे जाने का मन कर रहा है, कैसे उसको मिले। ये अगर हम ये कर पाते हैं तो हम ये हैव सॉल्व द कॉन्ड्रम ऑफ द स्किलिंग ऑफ इंडियन यूथ। और उसके साथ अगर हमारे इंडस्ट्री, प्रोएक्टिव इंडस्ट्री, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपने जो हिस्ट्री सुनाई गांधी जी, मैं वहाँ भी बहुत प्रभावित हुआ कि का मतलब 100 साल आपके होने वाले हैं और जिस तरह से आपने पूरी लीड लेके सारी व्यवस्था का आयोजन किया। सो अंत में चूंकि आप मुझे इन्वाइट करने आए, वहाँ मिले, आपको मंत्री से भी मिलाया, कारणवश हमारे मंत्री जी नहीं आ पाए, तो हम चाहेंगे अगले आने वालों में 1-2 महीने के अंदर ऐसा कुछ करें फिर हम दोबारा मंत्री जी को लेकर आएँ, निधि जी के मंत्री जी को लेकर आएँ, मैं अपने मंत्री लेकर आएँ और आपके साथ उनको बताएं कि नासिक जो है हैज़ ऑल द कैपेबिलिटी फॉर बीइंग द स्किल सिटी ऑफ इंडिया एंड एज यू सेड, यहाँ जो चलेगा पूरे देश में चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते कि दिल्ली में बैठ के गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा काम हो रहा है, ये हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते। ये इतना सारा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरे देश को, करोड़ों लोगों को अफेक्ट करने वाला काम है। जो आपने इसके बारे में कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, आई थिंक वी मस्ट थिंक अबाउट डूइंग स्किल GPT इन नासिक। ये कुछ करेंगे हम।